Welcome back. The chapter is third, human reproduction, and in NEET it gives 3 to 4 questions that we started. Now this is a fifth lecture on this chapter. Previously I told you that this bulky topic we are going to divide in few important titles for our convenience. You might be knowing that in very first lecture I enlisted here the title that we have to complete. So the first is male reproductive system, that consists of scrotum, testis, duct system, penis, accessory sex gland, that is seminal vesicle that occur in pair, prostate gland which is unpaired, and pair of Cowper's gland or bulbourethral gland. Our second title was histology of testis, in which we have seen that testis is nothing but the mass of 600 to 900 coiled tubules called seminiferous tubule. This seminiferous tubule contains germinal epithelial cell which undergo spermatogenesis and forms the sperms. In third title, we talked about spermatogenesis, how the sperms are formed. Spermatogonia became primary spermatocyte. Primary spermatocyte after first meiosis became secondary spermatocyte. After second meiosis, the secondary spermatocyte produces spermatid, and after spermiogenesis, they form sperms or spermatozoa. We know 50% of the sperms are X-containing sperm called gynosperm and 50% are Y-containing sperm called androsperms. And our last title was the structure of male gamete, that is human sperm. It has head containing nucleus and acrosome, neck containing proximal and distal centriole, middle piece that has in the center the flagella or axile filament surrounded by mitochondrial spirals called membrane cone, and the last part which is very long and locomotory part called tail. That were the 4 titles that we did in 4 lectures. And now again a group of 4 titles today we are starting. The first is female reproductive system. It will be followed by histology of ovary. It will be followed by oogenesis, and finally the structure of ovum. So in female reproductive system, we could say it is an organ system in human female that does 2 jobs. One is production of female gamete or ovum, that is 1 in every cycle from menarche to menopause. And second is a secretion of female sex hormones, that is estrogen and progesterone. So तुम्ही म्हणता की फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम आहे जे ह्यूमन फिमेलमध्ये आहे आणि याला 2 कार्य आहेत. एक ओहम प्रत्येक सायकलला बनवणे, दॅट इज फिमेल गमीट, आणि हे कधीपासून आयुष्यात सुरू होतं? फ्रॉम मेनार्च, म्हणजे फर्स्ट सायकलपासून, विच अकर्स ॲट प्युबर्टी सम 13-14 इयर. आणि तेव्हापासनं कंटिन्युअसली सायकल सुरू असतात आणि प्रत्येक सायकलच्या मिडवेला एक ओहम बनतो अप टू मेनोपॉज, दॅट इज लास्ट सायकल विच इज अराउंड 49-50 इयर ऑफ एज. मग सर आपण त्या दृष्टिकोनातून जर पकडलं की
13व्या 14व्या वर्षीपासून तर 50व्या वर्षापर्यंत, म्हणजे साधारणपणे एक 35-36 वर्ष होतात आणि प्रत्येक वर्षाला 13 साइकिल होतात. तो एक साल में 13 साइकिल्स आते हैं और हर साइकिल में 1 ओहम. तो ये हिसाब से हम वर्कआउट करें तो 450 450 ओहा एक फीमेल अपने फर्टिलिटी पीरियड में, अपने रिप्रोडक्टिव एज में बना सकती है. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला काम है हर महीने 1 ओहम बना के देना मेनार्ज से मेनोपॉज तक. और दूसरा, इट प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, द स्टेरॉइडल फीमेल सेक्स हार्मोन्स. तो जर फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम आहे, तो ती ऑर्गनपासून बनली असेल. हो. तो विच आर द ऑर्गन दॅट फॉर्म्स अ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम? सी, अ पेयर ऑफ ओव्हरी, a pair of oviduct, also called fallopian tubes, single uterus or hystera or womb. So a pair of ovary, pair of oviduct, uterus, vagina, that is female copulatory organ, vulva, that is female external genitalia, and last, accessory sex glands. And the accessory sex glands are Bartholin's gland, also called vestibular glands because they are present on either side of vaginal opening on vestibule, and second is mammary gland, which are structurally and functionally integrated with the female reproductive system. तो सर, a pair of ovary, a pair of oviduct, uterus, vagina, vulva, accessory sex gland, that is Bartholin's gland and mammary gland, constitute a female reproductive system. मग फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टमचे ऑर्गन कोणते? 2 ओव्हरी, 2 ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना, वल्वा आणि एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स. अब हम लोग एक स्केच निकालते हैं. आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टि से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम निकालनी है, तो आप ऐसे निकालोगे. तो पहले तो यूट्रस, अब दिस इज सर्विक्स. So uterus and opening of uterus is called cervix. By cervix, the uterus opens in a tube called vagina. So uterus, vagina. This is vaginal opening that opens to outside the body on vestibule. This is a pair of ovaries. That is primary female sex organ, and from each ovary starts a oviduct that opens in uterus. So pair of ovary, pair of oviduct, uterus, vagina, vulva that cannot be seen in the sectional view, front view, and accessory sex gland
So pair of mammary glands and Bartholin's gland. So those I will draw separately. Now pair of ovary, pair of oviduct, uterus, vagina, vulva, accessory sex glands constitute a female reproductive system. Let us start one by one. First, a pair of ovaries. Ovaries are primary female sex organs. So if the ovaries are primary, then oviduct, uterus, vagina, vulva, accessory gland all are secondary female sex organ. Ovaries, primary female sex organ. Now in case of male reproductive system, we said it is the penis and scrotum, male external genitalia. So in case of human females, the vulva, accessory glands are external female genitalia. म्हणजे जसं पुरुषामध्ये पेनिस आणि स्क्रॉटम हे एक्सटर्नल जेनिटालिया आहे, तो तसं फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टममध्ये फक्त वल्वा आणि ॲक्सेसरी ग्लँड हे एक्सटर्नल आहे, बाकी सगळे इंटरनल. तो चलो स्टार्ट करते ओवरी. सो ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन. दे आर मेझोडर्मल इन ओरिजिन. सो सर टेस्टिस सुद्धा होते मेझोडर्मल, ओवरीज सुद्धा मेझोडर्मल आहे. थर्ड पॉइंट, ovaries are present in lower abdomen on either side of uterus. So ये दो ओवरी है वो लोअर ॲब्डोमेन में है, खालच्या पोटात आहे, पेल्विक रिजन मध्ये. आणि युट्रस म्हणजे गर्भपिशवीच्या इकडून आणि तिकडून. सो ईच ओव्हरी इज आल्मंड शेप. सर बदाम बीज, हाँ, आलमंड शेप. and the size is 3 centimeter by 2 centimeter by 1 centimeter and weighs about 4 to 6 gram. तो टेस्टिसच्या वेळेस आपण म्हटलं होतं की इट इज 4 by 3 by 2.5 and 10 ग्राम. ओवरीज छोटी है. It is 3 centimeter by 2 centimeter by 1 centimeter and it weighs 4 to 6 gram and equal to the size of a almond shape. So they are primary female sex organ. They are mesodermal in origin, located in lower abdomen on either side of uterus. Each ovary is 3 by 2 by 1 centimeter, weighs about 4 to 6 grams. Now अटैचमेंट्स, मतलब कि ये जो दो ओवरी है इन अ पेल्विक रीजन, तो वो कहाँ कहाँ अटैच है. सो ओवरीज आर अटैच टू डॉर्सल बॉडी वॉल वाया अ पेरिटोनियल फोल्ड. ओवरीज आर अटैच टू डॉर्सल बॉडी वॉल बाय अ पेरिटोनियल फोल्ड कॉल्ड मेसोवेरियम. So attached to dorsal wall by mesovarium. So this is mesovarium. आप ये मान के चलो कि एक ऐसा पर्दा है और उस पे दो ओवरी अटैच है और वो पर्दा पीठ को चिपकता है.
So pair of ovaries are attached to dorsal wall via mesovarium. Each ovary is also attached to uterus. Each ovary is also attached to uterus via ovarian ligament. सो दोन ओव्हरी पाठीला अटॅच आहे. कोणाच्या थ्रू? पेरिटोनियमच्या. त्या पेरिटोनियमला काय म्हणतात? मेसोवैरियम. दो ओवरी यूट्रस को भी अटैच है बाय मीन्स ऑफ ओवैरियन लिगामेंट. तो सर पाठीलाही अटैच आहे, गर्भपिशवीलाही अटैच है. अब लैटरल साइड इस तरफ और उस तरफ से. So each ovary is attached to lateral wall by suspensory ligament. So यहां होगी ऐसी सस्पेंसरी लिगामेंट. सो ओवरी मेसोवैरियम ला अटैच है, मेसोवैरियम डॉर्सल वॉल ला अटैच है. ओव्हरी यूट्रसला अटॅच आहे बाय ओव्हॅरियन लिगामेंट आणि लॅटरली अटॅच आहे बाय सस्पेन्सरी लिगामेंट. मतलब 3 कनेक्शंस है. नेक्स्ट फंक्शन. तो सर ओवरीज आर डबल फंक्शनिंग ऑर्गन. मतलब ओवरी प्रोड्यूसेस 1 ओहम in every cycle from menarche to menopause and the function is alternate. मतलब अभी मार्च महीने में अगर राइट ओवरी ओहम बनाती है तो फरवरी में पिछले महीने में लेफ्ट ने बनाया होगा बाय एंड लार्ज जनरली स्पीकिंग. तो सर अगर साल में 13 साइकिल होते हैं और 13 ओहा बनते हैं तो किसी एक ओवरी से 6, एक ओवरी से 7 ऐसे. सो इट प्रोड्यूसेस अ फीमेल गमीट और ओहम 1 इन एवरी मंथ फ्रॉम मेनार्च टू मेनोपॉज एंड द फंक्शन इज अल्टरनेट. सेकेंड, सो दे एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड आल्सो. जैसे टेस्टिस प्रोड्यूसेस एंड्रोजन क्योंकि उसमें है लेडिक सेल्स, तो वैसे ओवरी प्रोड्यूसेस इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. तो कौन बनाते इस्ट्रोजन? तो सर ओवरी में ना हर महीने फॉलिकल की होती डेवलपमेंट. मतलब ओवरी के अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल्स है तो उसमें से एक फॉलिकल की डेवलपमेंट होती. प्राइमरी फॉलिकल बिकेम सेकेंडरी फॉलिकल, secondary follicle became tertiary follicle, tertiary follicle became Graafian follicle. So ऐसे उनकी डेवलपमेंट होती है. तो ये जो फॉलिकल्स होते हैं उनकी फॉलिकुलर सेल्स देती है इस्ट्रोजन. तो सोर्स ऑफ इस्ट्रोजन इज ओवरी. इन ओवरी द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल. कौन देता? प्रोजेस्टेरॉन. तो सुनो, 1 matured ovarian follicle called Graafian follicle is ready on midway of the cycle in one of the 2 ovaries. तो एक साइकिल, दिस इज 0 to 28 days with an individual variation of 1 to 3 days. म्हणजे माता भगिनींमध्ये जे सायकल्स असतात तर ते एक सायकल 28 दिवसाचा असतो. 1 ते 3 दिवसाचा कमी अधिक फरक पडू शकतो. आणि अराउंड द डे 14th, around the day 14th, one of the 2 ovary contain mature follicle called Graafian follicle. और अब LH जो हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
from anterior pituitary. So there is a surge of LH and that LH rupture the Graafian follicle. म्हणजे सर तुम्ही असं म्हणता की कुठल्याही सायकलच्या 13व्या 14व्या दिवशीच्या आसपास 2 ओव्हरीपैकी एका ओव्हरीत असते मॅच्युअर्ड ओव्हॅरियन फॉलिकल, त्याला ग्राफियन फॉलिकल म्हणतात. आणि तो ग्राफियन फॉलिकल फोडला जातो बाय LH. तो रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल टू रिलीज ओहम इज ओव्हुलेशन. It occurs on midway of the cycle under influence of LH. तो ग्राफियन फॉलिकल फूटने के बाद, उसमें से ओहम जाने के बाद जो रिमेन्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है, बचा कुचा फुटलेला, that became a temporary endocrine structure in the ovary called corpus luteum, and corpus luteum gives progesterone, and developing follicle follicular cell gives estrogen, और इसीलिए it is a double functioning organ. तो या ओव्हरीचे फंक्शन सांगा बरं. सर, प्रत्येक सायकलला मिडवेच्या आसपास एक फिमेल गमीट किंवा ओहम बनते फ्रॉम द ओव्हरी, आणि हे काम अल्टरनेट चालू असतं. म्हणजे फीमेल गमीट बनाना ये काम है, और दूसरा तो सर ओवरी देते इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉन, 2 स्टेरॉइडल हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन्स. तो दिस इज अबाउट ओवरी. नाउ रिकॉल. सो पेयर ऑफ ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन. ओवरीज आर mesodermal in origin. Ovaries are present in lower abdomen on either sides of uterus. Each ovary is 3/2 by 1 centimeter, 4 to 6 gram in weight. So ovary is connected to dorsal body wall by a double fold of peritoneum called mesovarium. It is also attached to uterus by ovarian ligament, and each ovary is attached to lateral body wall by suspensory ligament. And last, ovaries are double functioning organ. They produce ovum or female gamete, one in every cycle from menarche to menopause, and the function is alternate, and it produces 2 female sex hormone, estrogen and progesterone. Now, number 2, a pair of oviduct or fallopian tubes. A pair of oviduct or fallopian tubes. तो पहला पॉइंट, अ पेयर ऑफ मस्क्यूलर ट्यूब्स that start from respective ovary. So a pair of muscular tubes that starts from respective ovary and opens in uterus. So a pair माने 2 muscular tubes, मसल से बनी ट्यूब्स, which starts from ovary, म्हणजे ही ट्यूब सुरू कुठून होते? ओव्हरी पासून, and opens in uterus are called oviduct. A pair of muscular tubes or lateral tubes that starts from respective ovary opens in uterus are called oviduct. Second point, each oviduct is 10 to 12 centimeter in length. तो ये मार्कर 10 to 12 सेंटीमीटर है, तो इतना वो है ओविडक्ट. सो इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ. थर्ड पॉइंट,
each oviduct or fallopian tube is lined with ciliated columnar epithelial cells। तो ये एनिमल टिश्यू के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया नीट क्वेश्चन है। तो हमारे शरीर में सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियल सेल्स कहाँ रहती? सो एक तो ट्रकिया एंड ब्रोंकाई एंड फैलोपियन ट्यूब में रहती। ये सेल्स वहां रहती जहां चीजों को मूव करना है। ऑन एपिथेलियम चीजों को मूव जहां करना है वहां सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स रहती। तो a pair of lateral muscular tubes that starts from respective ovary opens in uterus are called oviduct. Each oviduct is 10 to 12 centimeter in length, internally lined with ciliated columnar epithelial cells। तो सर यहां किसको मूव करना है? तो जब मिडवे को ओहुलेशन होगा और ओहम बाहर आएगा ओवरी से, तो वो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, तो उसको ले जाना होगा। तो इंटरनली लाइंड विथ सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियल सेल्स। चौथा पॉइंट, ईच ओविडक्ट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। सो infundibulum, ampulla and isthmus। सो infundibulum, ampulla, isthmus। देखो proximal expanded funnel like part of oviduct is infundibulum। So proximal expanded funnel like part of oviduct is infundibulum। It has a opening called ostium। तो इन्फंडिबुलम में छेद होता है, ओपनिंग होता है ताकि ओहम अंदर जा सके, कॉल्ड ऑस्टियम। एंड इट हैज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्री। तो यहां नीट क्वेश्चन था, विच पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज क्लोज टू ओवरी ऑफ ईच साइड? ओविडक्ट का कौन सा पार्ट ओवरी के करीब है? तो सर इट इज इन्फंडिबुलम। तो ये फर्स्ट पार्ट है इन्फंडिबुलम। क्या है इन्फंडिबुलम? प्रॉक्सिमल एक्सपांडेड फनेल लाइक पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज इन्फंडिबुलम। It has an opening called ostium guarded by finger-like projections called fimbri। अब यहां से यहां तक this is long and dilated part। So long and dilated part is called ampulla। अब सुनो, अगर साइकिल का 13-14th डे है, इस महिला के साइकिल का 13-14 डे है और ओहुलेशन होके ओहम यहां पे पहुंचा, और अगर इस दिन के आसपास उस महिला के उसके अपने हस्बैंड के साथ अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट्स आते हैं, कोइटस होता है, इंटरकोर्स होता है, तो फिर यहां पे आएंगे स्पर्म्स।
और होगा फर्टिलाइजेशन. सो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई अराउंड अ डे ऑफ ओव्यूलेशन. ठीक है सर. Infundibulum proximal expanded funnel like part of the oviduct. It is close to ovary of each side. It has ostium guarded by finger like projection called fimbriae. Ampulla is a middle long dilated part and it is a site of fertilization in humans. मतलब a female gamete and a male gamete, they meet here. कब? तो सर, for fertilization it is necessary that the sperms and ovum must be simultaneously available in the oviduct. ये नीट क्वेश्चन आहे की फर्टिलायझेशन कधी होईल? ज्यावेळी तिथे ओहमही असला पाहिजे आणि स्पर्मही आले पाहिजे. ओहम कधी येत असतो? तो सर अराउंड मिडवे. आणि त्यावेळी जर कोइटस असला आसपास तर मग होते फर्टिलाइजेशन. अदरवाइज ये ओहम या स्पर्म इनमें 24 आवर की होती है फर्टिलाइजेबिलिटी, एबिलिटी टू गेट फर्टिलाइज. नाउ isthmus, it's a short and narrow part. So it is a short and narrow part that opens in uterus. तो infundibulum, ampulla, isthmus are the three parts of oviduct. Now the functions of oviduct. तो सर उसके 4 काम हैं. एक, टू रिसीव द ओहम ऑन मिडवे ऑफ द सायकल. म्हणजे मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या 14व्या दिवशी ओव्हरीतनं जे ओहम येतं तर ते त्याला रिसीव्ह करायचं आहे फॅलोपियन ट्यूबला. सो इट रिसीव्ह द ओहम ऑन द मिडवे ऑफ द सायकल. इट सर्व्स ॲज अ साईट ऑफ फर्टिलायझेशन. इथंच फर्टिलायझेशन होतं. थर्ड, इट इज द साईट ऑफ क्लिवेज डिव्हिजन ऑफ झायगोट इन ह्युमन. म्हणजे समजा फर्टिलाइजेशन झालं तो दिस इज डिप्लॉइड, जाइगोट वहां बनेगा, द फर्स्ट सेल ऑफ अ न्यू लाइफ. फिर उसमें फर्स्ट क्लीवेज होगा, 2 सेल का एम्ब्रियो बनेगा. फिर सेकंड क्लीवेज होगा, 4 सेल का एम्ब्रियो. फिर थर्ड क्लीवेज होगा, 8 सेल. फिर फोर्थ क्लीवेज होगा, 16 सेल. तो हे जे क्लीवेज डिव्हिजन्स आहे ते या फॅलोपियन ट्यूबमध्येच होत असतात. और फिर ये 16 सेल का जो गर्भ है कॉल्ड मोरूला वो जाएगा इन यूट्रस. तो पहला इंपॉर्टेंस या फंक्शन, इट रिसीव द ओहम on midway of the cycle. Second, it serves as a site of fertilization. Third, it is the site of cleavage divisions of zygote. And fourth, it nourish unfertilized ovum, fertilized ovum that is zygote. इनको वो नरिश भी करता है. उसमें कुछ न्यूट्रिटिव पेग सेल पाई गई है, पीईजी पेग सेल. तो इतना डिटेल में आपको नहीं है इसीलिए मैंने उसका नाम मेंशन नहीं किया कि सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल प्लस न्यूट्रिटिव पेग सेल भी है उसमें. तो ठीक आहे सर. तो आपल्याला आता ओव्हिडक्ट बद्दल काय कळलं? तो सर ओव्हिडक्टचे 4 काम आहे. To receive the ovum on midway of the cycle, to serve as a site of fertilization, it is the site where cleavage division of zygote occurs, and it nourishes the unfertilized ovum and fertilized ovum that is zygote. अब आखिरी पॉइंट, तो जैसे ये जो एक पेरिटोनियल फोल्ड है कॉल्ड मेसोवैरियम, इसको ओवरी चिपकी है, त्या पडद्याला ओवरी चिपकली. वैसे ये जो 2 फॅलोपियन ट्यूब है
ये इसको किसका सपोर्ट है? मग ह्या ट्यूब अशा लुडकत का नाही? सो दे आर सपोर्टेड फ्रॉम द बैक साइड. तो ये जो मेसोवेरियम है ना, यही ऊपर में है थोड़ा सा, पर उसका नाम बदल जाएगा. उस पेरिटोनियल फोल्ड को विच सपोर्ट द फैलोपियन ट्यूब आर कॉल्ड मेसोसाल्पिंग्स. मेसोसाल्पिंग्स. तो सर एक ऐसा पर्दा है, हाँ, उसमें ब्लड वेसल है, नर्व्स है, और उस पर्दे के ऊपर ओवरी है तो मेसोवेरियम, और ये ट्यूब्स भी उसको ही चिपकी है, पर उसको बोलते हैं मेसोसाल्पिंग्स. ओके, तो दिस इज मेसोसाल्पिंग्स. नाउ लेट अस हरिडली रिकॉल ओविडक्ट. A pair of lateral muscular tubes which start from ovary opens in uterus are called oviduct or fallopian tube. Each oviduct is 10 to 12 centimeter in length. Internally it is lined with ciliated columnar epithelial cell and some nutritive PEG cells. Each oviduct is divided in three parts: infundibulum, ampulla, isthmus. Proximal expanded part. Proximal expanded part of oviduct close to ovary of its side. Proximal expanded funnel-like part of oviduct which is close to ovary of its side is called infundibulum. It contains ostium and guarded by finger-like projection called fimri. और इसीलिए कभी कभी इसको बोलते fimbricated funnel. The second part is ampulla that serves as a site of fertilization in human, and the short and narrow part which opens to uterus is called isthmus. Then next, functions of oviduct: to receive the oohmon midway of the cycle, to serve as a site of fertilization, it is also a site of cleavage divisions of zygote, and it nourished the fertilized ovum, that is zygote, and unfertilized egg. The fallopian tubes are attached to a fold of peritoneum called mesosalpinx. अब तीसरा, यूटेरस या हिस्टेरा या वोम्ब. पहला पॉइंट, हाईली डिस्टेंसिबल मस्क्यूलर सैक. हाईली डिस्टेंसिबल मस्क्यूलर सैक present in a pelvic region between bladder and rectum. म्हणजे सो ही पार्ट, ही कंबर, हे पोट, तो यहां रहता यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा, यहां रहता रेक्टम और ये एनस, तो इन दोनों के बीच में रहता यूट्रस. तो पहला पॉइंट, हाईली डिस्टेंसिबल मस्क्यूलर सैक प्रेजेंट इन अ पेल्विक रीजन म्हणजे लोअर ॲब्डॉमेन बिटवीन ब्लॅडर अँड रेक्टम इज यूट्रस. सो पहला पॉइंट, हायली डिस्टेंसिबल मस्क्युलर सॅक म्हणजे अशी ताणल्या जाणारी मसलची बनलेली पिशवी, मसल से बना थैला जो
स्ट्रेच होता. हायली डिस्टेन्सिबल मस्क्युलर सॅक प्रेझेंट इन अ पेल्विक रिजन बिटवीन ब्लॅडर अँड रेक्टम. समोरून काय असतं? युरिनरी ब्लॅडर. मागून काय असतं? रेक्टम. त्याच्यामध्ये काय असते? युट्रस इन फिमेल. सेकंड, it is 8 by 5 by 2 centimeter and 30 to 40 gram in weight. So size is 8 सेंटीमीटर by 5 सेंटीमीटर by 2 सेंटीमीटर और वजन 30 से 40 ग्राम. नेक्स्ट, इट इज इन्व्हर्टेड पियर शेप. तो पियर फ्रूट, नाशपतीचं फळ, तो जैसे ये नाशपति का फल है, तो इसको अगर हम लोग उल्टा करें तो ऐसे रहता. इट इज इन्वर्टेड पियर शेप. तो पहला पॉइंट, हाईली डिस्टेंसिबल मस्क्युलर सैक प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन between bladder and rectum is uterus. Uterus is 8 by 5 by 3 centimeter, 30 to 40 gram in weight. Next, it is inverted pear shaped sac. चौथा point, uterus has 3 parts. तो ये जो यूट्रस आहे म्हणजे गर्भपिशवी आहे, याचे किती पार्ट्स होतात? 3. सो upper dome shaped part is called fundus. Middle part is corpus or body, and this lower narrow part is called cervix. This is corpus or body, and this is fundus. So fundus, a dome shaped part, body or corpus or middle part, broad part, and narrow opening is called cervix. So fundus, corpus, cervix. सुनो, यूट्रस opens in vagina. Uterus opens in vagina by cervix, and cavity of cervix is cervical canal. म्हणजे हे जे गर्भपिशवीचं तोंड आहे याला काय म्हणतात? सर्विक्स. यानी ते कशात उघडते? वजायनामध्ये. तो ह्या जो पॅसेज दिसतो याला काय म्हणतात? सर्वाइकल कैनाल. अब देखो, इट हैज 2 ओपनिंग्स. दिस इज एक्सटर्नल os by which it opens in vagina. This is internal os by which it opens in uterine cavity. म्हणजे सर ही जी ट्यूब आहे याला सर्वाइकल कॅनाल म्हणतात. हो, 2 सेंटीमीटर असतो आणि त्याला 2 तोंड असतात. एक असतं एक्सटर्नल ऑस दॅट ओपन्स इन वजायना और एक रहता इंटरनल ऑस, इट ओपन्स इन यूट्राइन कैविटी. ये सर्वाइकल कैनाल है. नेक्स्ट, आगे 5वां पॉइंट. तो first point was uterus is highly distensible muscular sac present in pelvic region between bladder and rectum. It is 8 by 5 by 2 centimeter, 30 to 40 gram in weight. It is inverted pear shaped sac. Uterus has 3 parts. The upper dome shaped part is fundus, middle broad part is body, lower narrow opening is called cervix.
So cervix is 2 centimeter tube by which uterus opens in vagina, and its cavity is cervical canal. It has external os and internal os. अब ये पॉइंट देखो, इट इज इंपॉर्टेंट. सो यूट्रस has 3 covers. म्हणजे गर्भपिशवीला 3 आवरणं असतात. The outermost peritoneal cover is called perimetrium. Perimetrium. Then middle thick muscular cover made up of smooth muscles. So this is called myometrium. So perimetrium outer cover, myometrium middle cover made up of smooth muscles which is not under will control, and uterus is internally lined with a richly vascular, rich blood supply, richly vascular and glandular cover, and it is called endometrium. तो किती कवर आहे? 3. पेरीमेट्रियम, पेरिटोनियल फोल्ड म्हणजे पेरिटोनियल कवर, मायोमेट्रियम मेड अप ऑफ स्पेशल स्मूथ मसल विच अंडरगो कॉन्ट्रॅक्शन, विगरस कॉन्ट्रॅक्शन ॲट द टाइम ऑफ पार्च्युरेशन, ॲक्ट ऑफ डिलिव्हरी. सो बाळाला जन्म देताना ज्याचे खूप जास्त कॉन्ट्रॅक्शन होतात तो मायोमेट्रियम. आणि आतमधलं जे कवर आहे दॅट इज एंडोमेट्रियम. तो ते असते रिचली वास्कुलर है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई रहता, एंड इट कंटेन सर्टन सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड यूट्राइन ग्लैंड्स दैट सिक्रेट यूट्राइन मिल्क. तो सुनो, दिस एंडोमेट्रियम which is richly vascular and glandular undergo cyclical changes in thickness during menstrual cycle. तो सर तुम्ही असं म्हणता की ते आतमधलं जे कव्हर आहे एंडोमेट्रियम त्याच्या थिकनेसमध्ये सायक्लिकल चेंजेस येतात इन मेंस्ट्रुअल सायकल. कैसे? तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 days ऑफ द सायकल द एंडोमेट्रियम कोलॅप्स, म्हणजे माता भगिनींमध्ये जे पिरियड्स येतात तर त्याच्यामध्ये पहिल्या 4 दिवसामध्ये हे एंडोमेट्रियम जे आहे ते ऑलमोस्ट कोलॅप्स होते, निघून जाते खरडून. फक्त त्याचा बेसल पार्टच इंटॅक्ट राहतो, म्हणजे जेवढी ओव्हर ग्रोथ होती ती निघून जाते. तो जाहिर है कि एंडोमेट्रियम कोलैप्स हो गया तो ब्लड वेसल भी रप्चर हो जाएगी, तो भी ब्लड भी जाएगा. तो मेंस्ट्रुएशन माने सो इट इज द एंडोमेट्रियल सेल्स, ब्लड फ्रॉम रप्चर्ड वेसल्स, अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ द लास्ट साइकिल एंड वजाइनल म्यूकस. सो endometrium, blood from ruptured vessel, unfertilized ovum and vaginal mucus that flow for first 4 days. सो काही माता भगिनींमध्ये 3 दिवस, काही माता भगिनींमध्ये 4 दिवस, काही माऊल्यांमध्ये 5 दिवस, 3 to 5 days. ओके सर, एंडोमेट्रियम में आते हैं साइक्लिक चेंजेस इन थिकनेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो पहले 4 दिनों में वो सबसे थीन है, हार्डली इट इज
हाफ टू 1 mm, अर्धा ते 1 मिलीमीटर. फिर फ्रॉम 5th डे टू 13th डे ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ द साइकिल कॉल्ड प्रॉलिफरेटिव्ह फेज. तो जेव्हा 5व्या ते 13व्या दिवसापर्यंत इस्ट्रोजेन नाम का जो ओवरी का हार्मोन है वो उसकी रीग्रोथ करवाता, जो कुछ भी पहले 4 दिनों में गया उसको वापस पाया, रिपेयरिंग, रीग्रोथ. तो अब उसका थिकनेस बढ़ जाता है एंड इट बिकेम 1 to 3 mm. Then during 13-14 day there is ovulation and 15 onwards again the thickness increases due to proliferation of the cells of endometrium. So it is thickest during the last phase called secretory phase. तो सर ये 14वें दिन समझो ओहम आ गया, ओव्युलेशन झालं आणि इथे ओहम आला 14व्या दिवशी. पर अगर उसको स्पर्म ही नहीं मिला तो ना होगा फर्टिलाइजेशन, ना होगा इम्प्लांटेशन, ना रहेगी प्रेग्नन्सी. म्हणजे हे जे ओहम येत असतं प्रत्येक माऊलीमध्ये सायकलच्या 14व्या दिवशी, तर त्याला जर स्पर्म नाही भेटला ते वाया जातं. म्हणजे ना फर्टिलाइजेशन, ना इम्प्लांटेशन, ना प्रेगनेंसी. और अगर नहीं है प्रेगनेंसी तो क्या करना इस थिक एंडोमेट्रियम का? इट्स वेरी कॉस्टली टू मेंटेन. It is rich in blood supply. All the energy and focus is on endometrial thickness during the last phase. पर हुआ ही नहीं फर्टिलाइजेशन, नहीं है प्रेगनेंसी, तो फिर ये पूरा गिर जाएगा और वो आ जाएगा थ्रू सर्विक्स, वजाइना, आउटसाइड. So endometrial cell, blood from ruptured vessel, vaginal mucus, unfertilized egg that flow for first 4 days is called menstruation or menstrual flow, and a woman is losing some 40 to 50 ml of the blood in every month. ओके, तो सर हे समजलं की एंडोमेट्रियमच्या थिकनेसमध्ये बदल होत राहतात. हो गया. दैट इज ड्यूरिंग द पीरियड्स ये सब गिर गया. वापस उसकी होगी रीग्रोथ एंड वापस इट अचीव्स थिकनेस अगेन एंड अगेन. ऐसा चलते रहता है. तो सर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द रिलेटिव चेंजेस in pair of ovary and wall of uterus, nothing else. म्हणजे हा जो 28 दिवसाचा सायकल असतो याच्यात स्त्री शरीरामध्ये काही बदल नाही होत. जे काही बदल होतात ते 2 ओव्हरी आणि त्या युट्रसची जी वॉल आहे एंडोमेट्रियम त्याच्यात होत असतात. ठीक आहे सर. पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम समजलं. आता पुढचा पॉइंट, फंक्शंस ऑफ यूट्रस. आपके बोर्ड में पूछ सकते, राइट फंक्शंस ऑफ यूट्रस. तो नंबर 1, इट इज द साइट फॉर एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंट. म्हणजे गर्भाची जी वाढ होते ते गर्भपिशवीतच होते. सो इट इज अ साइट ऑफ एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंट. नंबर 2, इट नरिश द डेव्हलपिंग एम्ब्रियो. Number 3, it help in formation of maternal part of placenta. So placenta is a connection between mother and fetus. So this placenta is contributed by 2 individuals. The fetus, this is called fetal placenta, and this is maternal placenta. तो एक तो इट इज अ साइट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट, दूसरा इट नरिश द डेव्हलपिंग एम्ब्रियो, तीसरा इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मैटरनल पार्ट ऑफ प्लासेंटा, चौथा
It helps in parturition, that is delivery of the baby, by its vigorous contractions. और पांचवा, it is the site from where menses begins. तो यही वो जगह है जहां से मेंसेस आते हैं. सो यूट्रस टू सर्विक्स टू वजाइना टू आउटसाइड, ये उसके फंक्शंस है. नाउ द रिवीजन. फर्स्ट पॉइंट, यूट्रस इज हाईली डिस्टेंसिबल मस्क्यूलर सैक which is inverted pear shape. Location, it is located in a pelvic region between bladder and rectum. Size 8 by 5 by 2 centimeter, 30 to 40 gram in weight. The parts of uterus, upper dome shaped part called fundus, middle broad is body, lower opening is cervix. Next, the cervix is a narrow passage which opens in vagina. This is called cervical canal, which is 2 centimeter. It has external os and internal os. Then uterus is surrounded by outer peritoneal cover called perimetrium, a middle muscular, made up of smooth muscle, not under will control, muscular cover called myometrium, and inner richly vascularized and glandular cover called endometrium. Endometrium undergo the cyclic changes in thickness during the cycle. The thickness is minimum during the first phase called menstrual phase, maximum during the last phase, fourth phase called secretory phase or luteal phase. Okay, functions. So it is the site of embryonic development. It nourishes the developing embryo. Then it forms a maternal part of the placenta. It helps in parturition, and it is the place from where the menses starts. अब इस यूट्रस को भी सामने से और पीछे से एक पेरिटोनियल कवर रहता है. जैसे मेसोवेरियम, मेसोसाल्पिंग्स, वैसे द डबल वॉल्ड फोल्ड विच कवर्स यूट्रस इज कॉल्ड मेसोमेट्रियम. तो यहां हमने पेयर ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ ओविडक्ट एंड यूट्रस, ये 3 टाइटल देखे. अब मेरे अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा वजाइना, वल्वा, accessory glands. Thank you.